गुड मॉर्निंग गाइस। सबको मेरा बड़ा प्यार भरा नमस्कार। और जो मुझसे बड़े हैं उनको सादर प्रणाम। और मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन सबके लिए बहुत शुभ और मंगलमय हो। आज 30 अगस्त है। डे 16 है हमारा लंदन, दिल्ली टू लंदन ट्रिप का। और ये हम इस समय लासा में हैं। पीछे आप देख रहे हैं मेरी हाइलेक्स, इसकी पैकिंग जारी है। हमें बताया गया ऑर्गेनाइजर्स द्वारा कि हमें 9:30 बजे सुबह यहाँ से निकलना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जाना कहाँ है वो बताया था, एंडो नेगवो, कुछ कन्फ्यूजन है, नाम प्रोनाउंस नहीं होते हैं। आज हमारी नई चाइनीज़ गाइड भी हमारे साथ ज्वाइन कर रही है, तो उसी के मुंह से मैं सुनता हूँ और उससे आपका परिचय कराता हूँ। गाइस, दिस शी इज़ आर न्यू चाइनीज़ गाइड फॉर नेक्स्ट 3 डेज। अगले 3 दिन तक एमी और ये भी हमारे साथ चलेंगे। उसके बाद एमी विल लीव द ग्रुप एंड शी विल कंटिन्यू टिल द बॉर्डर ऑफ कजाकिस्तान। एम आई राइट? आप कजाकिस्तान तक जाएंगे। व्हाट इज योर नेम? Shalon. Pardon? Shannon. Shalon. Shalon, and I think she is speaking better English than Amy, so maybe we'll understand better. So, Shalon. Shalon, yeah. Shalon is a nice name. And you're from which place? Chengdu. Acha, you're from Chengdu. Yeah. So you're working in that Nova company. Yes. Okay. So what is the program of today? Where we are going? We're just driving because it's a long distance driving, about 7 hours. Driving. 7 hours drive, and Yeah. you said 460 kilometers approximately. 468 kilometers. Okay, she is very particular. 468 kilometer. And what is the name of the place? Ando. Ando, A-N-D-O. Yes. And how are the roads? The road is half is highway, half is national road, but not a bumping. Okay. Roads will be good. Roads are good in You China. will have enjoy a lot of massage, free massage in the bumping road. Acha, there is a bumpy road also. Yeah. Oh, guys, now we will be ready for bumpy road again. So we had a experience of that before. Yeah. So she is saying कि आप मसाज के लिए तैयार रहिए bumpy road पे. And what is the height of that place? More than Lhasa or less than Lhasa? 1,000 higher. Is the city we are going to stay tonight is 4,700 4,700. meters. Oh my God! This is The next 2 nights will be the same. The next Okay. night will be 4,000. so guys, यहाँ हम अभी 3,800 meters पे हैं और अब we are going to 4,700 meters. Yes. I think people will need Dimox, that tablet we take for Yeah. acclimatization. We need the preparation for the high city. Yeah. You tell other participants that Uh-huh. we are going to 4,700 meters. That's a very big height, and we are going to sleep there at that height. Yeah, we will sleep 2 nights, tonight and tomorrow night. Tomorrow night Tomorrow- also we are staying in the same place, In the same place but the same altitude. same altitude. Okay. Thank you, Shalon. Thank you very much. Yeah. Hope you'll enjoy your company. Yeah, Thank you. you're welcome. Bye bye. Yeah, bye. Guys, he is our new friend. और ये देखो रोहित के ना पीछे से धुआं निकल रहा है पिछवाड़े से। पता है क्यों? उसके एक हाथ के पीछे कुछ हवा टाइट हो गई। व्हाट्स योर नेम? Well, my name is Anthony. Anthony. That's a easy name to remember. I'm from Vietnam. Oh, Vietnam. I am going there next in December. Really? Yeah, Vietnam is a very good country. Very too. nice and cheap to stay. You don't spend much. Cheap price make the attractive thing about our countries. Yeah, so But like it's also- not heavy on the pocket. Yes, that right. Yeah. And you from India? Yeah, we are India. We are driving to London by car. These are our cars. You can see all. So Right from India. you are shocked? Yeah, I'm very shocked. You ride from India to London. Yes, 90 days, 38 countries. 38 country is a target. Yes. So how many countries have you been? No, traveled? this is our Nepal and China. Nepal. And China. We just started 15 days ago. Today is our 16th day. 16th or 15th day? 16th day. So how long? ये for the देखो whole trip? हाथ पीछे चला गया, इसका फिर से धुआं आ How रहा long for the whole trip? है। 90 days. 90. 3 months. Oh my Yeah. God. So this guy is That's a shocked. very good bucket list of your life. Yeah. That's very good bucket list. Good, you're liking it. It's a dream trip. It's my dream too. but Okay, bye bye. Have a nice day. sorry for disturbing. No. You're most welcome. And you offered him something nice. Have a nice trip. Thank you. You guys are wonderful. थैंक यू, बाय बाय। ये आज का ब्रेकफास्ट और ये आज के मेहमान डाइनिंग हॉल में। मेरे को लगता नहीं है कि कुछ नया है। ये हमारा खरबूजा लग रहा है और जूस है, वही सेम पॉरेज, हाफ फ्राई और डबल फ्राई। एंड व्हाट इज़ हेयर? बॉइल्ड एग्स। तो यार इधर ना कुछ खास, ये तो कल मैंने आपको दिखाया था, तो एग्जैक्टली डिट्टो सेम टू सेम है।
देयर इज़ नो वेरिएशन। तो मैं आपको बोर नहीं करूँगा इसको दिखा के। तो चलो जो भी थोड़ा बहुत मेरे को खाना है मैं खाता हूँ। आज 29 अगस्त और मेरी गाड़ी अभी तक चल चुकी है 2363 किलोमीटर। ये डिस्टेंस शुरू हुआ दिल्ली से 15 अगस्त को। आज 30 अगस्त की मॉर्निंग है। आज हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंडो के लिए निकलने वाले हैं 5-10 मिनट में। सगास्टे में हमें लाइसेंस मिला था, ड्राइविंग लाइसेंस जो आप देख चुके हैं, और इधर लासा में हमें मिल गई है नई नंबर प्लेट। तो ये मेरी गाड़ी की चाइनीज़ नंबर प्लेट है। इसको हमें डैशबोर्ड पे रखना है, कभी भी जब कोई मांगेगा तो हमें इसको दिखाना है। तो जब तक अब हम चाइना में हैं तो हमारा चाइना का ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा और ये वाली नंबर प्लेट चलेगी। और इसके पीछे क्या लिखा है वो आप देखिए। इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा है, बस ये दिख रहा है, हाइलेक्स लिखा है, इंजन नंबर लिखा है और चेसी नंबर लिखा है, बाकी सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है। तो अब ये लाइसेंस हमारा नया लाइसेंस प्लेट हो गया एज पर चाइनीज़ system. Guys, we started around 10:05 a.m. Chinese time from the hotel in Lhasa. Now we are struggling to get diesel. We went to first diesel station. हम पहले डीजल स्टेशन पे गए थे तो वहाँ पे -20 वाला डीजल था जो थोड़ा सा महंगा होता है। तो अब हम दूसरे डीजल पंप पे जा रहे हैं। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इतना हमने टाइम वेस्ट कर दिया, तो इससे अच्छा हम 1 युआन फालतू ही दे देते पर लीटर, क्योंकि उससे कीमती तो हमारा समय बर्बाद हो रहा है। 10:05 पे हम चले थे, 10:30 बज गए हैं। अभी तक तो हमने जर्नी शुरू भी नहीं की है। डीजल एक पंप से दूसरे पंप की तरफ जा रहे हैं और पता भी नहीं अभी तक दूसरा पंप है कितनी दूर। तो ये आप इस बहाने लासा देख लीजिए। लासा का मेन चौक लग रहा है मेरे को। ये काफ़ी सारी इस पर सड़कें मिल रही हैं। तो मेरे आगे विकास दयाल की गाड़ी चल रही है, उसके आगे अल्टीरस G4 है, उसके आगे महिंद्रा XUV 500 है, उसके आगे मोटरसाइकिलिस्ट हैं, उसके आगे लीड कार है जो कि ज़ाइलो है, जो इस समय सबसे सही चल रही है। ज़ाइलो में ही सब लोगों का खाना है। अरे मेरे को जो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे ना विमल बैग, अब मेरे को पता लग गया। तो मैंने एक क्लिप डाली थी जिसमें ज़ाइलो का पीछे का ढक्कन खुला हुआ था, तो उसमें खाने के पैकेट जिस बैग में थे ना वो विमल बैग थे। अब इसलिए बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, बड़ा मजाक सा बन गया, वायरल हो गया ये विमल बैग भी। लासा से निकल के फिर अभी हैं हम लासा में ही टेक्निकली। तो अब हम डीजल ले रहे हैं और यहाँ पे आपका रेट जो है 7.95 है। पूरी जगह 7.95 ही है और यू स्माइल पे अच्छा माना जाता है। और ये पता नहीं क्यों इतनी जल्दी ये बंद हो गया है, अभी तो ज़्यादा आना चाहिए। तो ये अपने आप ही हट गया। तो 185 युआन का आया है, 23.28 लीटर्स। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा फ्यूल आएगा, तो इतना फ्यूल आया है, देख लीजिए आप। ऑलराइट, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है। 185 युआन 23.28 लीटर्स। यहाँ फ्यूल लेने के लिए ना हमें चाइनीज ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ा, गाड़ी का नया नंबर प्लेट भी दिखाना पड़ा, सबको नहीं, ग्रुप में एक। तो मेरे पीछे ना एक पुलिस की कार लगी थी। ऐसा लग रहा है कि हमें वो पुलिस वालों ने जाके पेट्रोल पंप वालों को बोला होगा कि पहले इनका लाइसेंस और वो चेक करो, क्योंकि इससे पहले किसी ने लाइसेंस या नंबर प्लेट नहीं मांगा था डीजल लेते हुए। तो ये भी एक बात है कि डीजल लेने के टाइम पे आपके पास चाइनीज ड्राइविंग लाइसेंस और चाइनीज नंबर प्लेट होने से कन्वीनियंट रहेगा, नहीं होने से भी मिलेगा लेकिन कभी परेशान भी कर सकते हैं। अब हम अंदर पेमेंट करने आए हैं, यहाँ का सिस्टम अलग है, बाहर पहले फ्यूल भराओ फिर अंदर पेमेंट करने आओ। गाइस, यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट भी दिखाना पड़ा, ड्राइविंग लाइसेंस भी, और ये गाड़ी की नंबर प्लेट भी। फिर एक स्लिप बनी, वो स्लिप को यहाँ जाके पेमेंट किया। पेमेंट तो फटाफट हो गया लेकिन ये प्रोसेस में काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। और यहाँ पे ना आपका नियो ग्लोबल कार्ड आराम से चल रहा है, ज़रूरी नहीं है वो आपका कार्ड हो। एक दो जगह हमें ऐसा लगा था कि आप ही का अपना कार्ड होना चाहिए और किसी और का नियो ग्लोबल कार्ड पे अभी हमने चलाया तो उस पर भी पैसे निकल गए। फाइनली आउटसाइड लासा, जॉइनिंग ए हाईवे टू एंडो। इट्स 11 AM. We lost almost 1 hour for fuel only. So I don't know why the guide made us take fuel in the city. हम हाईवे पे भी तो फ्यूल ले सकते थे, तो वो बोली कि हाईवे पे फ्यूल में मिलावट हो सकती है। तो सुन के बड़ा अच्छा लगा कि चाइना में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो यहाँ पे भी फ्यूल में मिलावट हो सकती है। और आज की तो सड़क भी बताया कि हमें काफ़ी डिस्टेंस टूटा फूटा मिलने वाला है। तो आज अब हमें नया नंबर प्लेट भी मिल गया है, तो अब चालान भी हो सकता है उस नंबर प्लेट से हमें आ जाए।
लेकिन वो नंबर प्लेट ना हमने गाड़ी के नंबर प्लेट पे नहीं चिपकाई हुई है, गाड़ी के अंदर रखी हुई है। जब भी कोई मांगेगा तो दिखाएंगे। ऐसे ही लाइसेंस भी है अब हमारे पास चाइनीज़ लाइसेंस है, चाइनीज़ नंबर प्लेट है। आपके पास डीजल भी लेने के लिए उन्होंने पासपोर्ट भी चेक किया, नंबर प्लेट भी चेक की और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किया। फनी था, लेकिन हाँ, न्यू ग्लोबल कार्ड चल रहा है हर जगह। राइट साइड में मेरे एक रिवर फ्लो कर रही है, रिवर का नाम मेरे को नहीं मालूम है। तो अभी फिर से एक रेड लाइट आएगी और रेड लाइट के बाद हम थोड़ा सा राइट होंगे। सुबह दोस्तों मैं एक और मोटरसाइकिलिस्ट को कवर करना चाह रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि एक दो सब्सक्राइबर बोले कि सारी मोटरसाइकिल्स को दिखाओ, उनसे इंट्रोड्यूस करो, बाकी गाड़ियों को दिखाओ, उनसे इंट्रोड्यूस कराओ। मैंने सोचा कि चलो, जो मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, तो मुझसे प्यार करते हैं, उनकी बात का मैं मान रखूंगा। लेकिन ना मेरे को सुबह सुबह एक बेइज्जती सहनी पड़ गई। मैं एक मोटरसाइकिलिस्ट के पास गया, उससे बोला नहीं प्लीज डोंट डू इट। वैसे तो उसका हक है, क्योंकि वो नहीं आना चाहता, वीडियो पे तो नहीं आना चाहता। अरे उसको बात को छोड़ो, ये रिवर देखो आप, मस्त लग रही है, एकदम ग्रीन ग्रीन। और इसके बीच में आपका मतलब डेप्थ नहीं है ज्यादा, लेकिन यस, वाटर इज लुकिंग सो क्लीन। और ये देखो आगे जय और वीरू की मोटरसाइकिल मिल गई। जय बैठा है, वीरू गायब है। तो ये हम एक टनल में घुस रहे हैं और ये विकास दयाल की गाड़ी मेरे आगे चल रही है, उसके आगे अर्ट्यूरस है। आज हमें दूसरी साइड ऑफ चाइना भी शायद देखने को मिले, गाइड के अनुसार 200 किलोमीटर के बाद बम्पी रोड आएगी। अब उसने ऐसा बोला है, कितना सच है कितना सच नहीं है वो समय के साथ पता लगेगा। ये छोटी टनल है, यही अच्छी लगती है यार। बड़ी टनल में ना आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम उतना मजा नहीं आता है। अभी हम टनल से बाहर निकलने वाले हैं। इन्होंने जो लैंप पोस्ट लगे हैं ना सड़क के दोनों तरफ, वो बड़े सुंदर बनाए हुए हैं डिजाइनर। ये देखो क्या बढ़िया लग रहे हैं लैंप पोस्ट। अब आप देख पाएंगे, ये देखिए लैंप पोस्ट कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप नज़ारों का मजा लीजिए। बेसिकली मेरे को समझ में आ रहा है कि लासा हमने छोड़ दिया है और हम नए रास्ते की तरफ बढ़ चुके हैं। तो जो लोकल मेरे को तिब्बतन्स नजर आए ना, दे आर नॉट दैट फाइनेंशियली वेल ऑफ। मेनलैंड चाइनीज वाले हैं वो मेरे को अमीर लग रहे हैं। यहाँ के जो लोकल वाशिंदे हैं ना, वो नहीं लग रहे हैं। तो या तो वो लेबर का काम कर रहे हैं या फिर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं। बाकी वो सरकारी नौकरियों में या उसमें नहीं नज़र आ रहे हैं। जो थोड़े पढ़ लिख के हैं वो शायद गाइड का भी काम कर रहे हैं, और कुछ की शॉप्स हैं वो ठीक है, वो वेल ऑफ होंगे। और हमें ना काफ़ी बेगर्स भी नज़र आए, और ये मोस्टली सारे बुद्धिस्ट हैं। तो वो देख के थोड़ा दिल दुखा कि यहाँ पे भी जो लोकल तिब्बतन्स हैं वो बेगिंग का भी काम कर रहे हैं। और एक तो मैंने बहुत ओल्ड लेडी को देखा, डंडी लेके झुक के चल रही थी, हाथ में नोटों का बंडल था और हर बेगर को नोट देते हुए जा रही थी। देख के अच्छा लगा मेरे को। और वो खुद इतनी ओल्ड थी, और जिन बेगर्स को वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी वो उससे कहीं ज़्यादा यंग थे। अरे ये बिल्डिंग आपको याद आ रही है, जब लासा में आते हुए भी मैंने आपको दिखाई थी। तो इसका मतलब हम उसी हाईवे पे जा रहे हैं जिस हाईवे से हम लासा में आए थे। ये क्या है मेरे लेफ्ट में, ये नहीं पता, इसके ऊपर कोई बोर्ड नहीं लगा है। कोई बड़ा सा मॉल ही नज़र आ रहा है, ये वाला लेफ्ट में। और ये बिल्डिंग्स हमने देखी थी आते हुए। तो लासा भी क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट आते हैं ना यहाँ पे, मेनलैंड चाइना से भी बहुत लोग घूमने आते हैं, और दूसरी कंट्री से भी। मेरे को वियतनाम से मिले, श्रीलंका से मिले, बेलारूस से मिले।
Guys, for the first time we have been stopped by the police. हम लोग तो, मेरी गाड़ी अभी रेड लाइट के पहले है, बाकी रेड लाइट के बाद सबको रोक लिया है। और यहाँ पे देखो पुलिस वाला एक तिब्बतन को भी रोका है उसने, छोटे वाले ऑटो लेके, लेकिन अब उसको जाने नहीं रोका है। एक को रोका, जाने दिया, दूसरे को रोका, जाने दिया, और हमारी गाड़ियाँ आगे रुकी है। वो देखो, आपको दिख रहा है, वो एक ग्रीन जैकेट में पुलिस वाला आ रहा है और हम यहाँ रुके हैं, हमें भी जाके वहीं रुकना पड़ेगा उनके पीछे। अब देखो क्या मसला है। तो अब पहली बारी जब से हम चाइना में घुसे हैं, आज हम लोगों को पुलिस ने रोका है। आप देखें क्या माजरा है। दोस्तों कुछ नहीं था, वो बस क्यूरियस थे पुलिस वाले भी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हमें हेलो थैंक यू बोल के जाने दिया। तो हम लास्ट से 70 किलोमीटर आगे आ गए हैं। सुबह काफ़ी मिसमैच रहा, डीजल भी, और फिर रोहित की गाड़ी पीछे रह गई, एक और बंदे की गाड़ी पीछे रह गई। इस समय अब 12:30 बजे हैं और हम एक मस्त एक्सप्रेस वे से गुजर रहे हैं। मेरी राइट साइड पे एक रेलवे लाइन भी बनी है। आज दूसरी वाली गाइड का नाम, जिसका शैलोन है, जिसको मैंने सुबह आपसे इंट्रोड्यूस कराया था, वो विकास दयाल की गाड़ी में बैठी है। तो आज वहाँ से कुछ इनपुट विकास दे रहा है, वो शैलोन उसको बता रही होगी, वो वॉकी पे हमें बता रहा है। तो ये जो रेलवे लाइन साइड में चल रही है ना, आपको दिख रही है राइट साइड पे, कहते हैं ये 5000 मीटर्स तक गई है रेलवे लाइन, और उसको बनाने में बहुत मुश्किल आई थी। यहाँ तो बड़ा आसान लग रहा है, लड्डू सा है, स्ट्रेट है, लेकिन बीच में बहुत पहाड़ आए होंगे ना, और सब में टनल्स बनानी पड़ी होंगी। तो अब ये देखिए सामने मोटरसाइकिलिस्ट। अब तो हाईवे लगता है सिर्फ हमारे लिए है, कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा है। इस हाईवे पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आ रहा है। वैसे तो हाईवे इतना मस्त है यार, इस पर तो 140 की स्पीड होनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, अब जो स्पीड है उसी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब हम उसी स्पीड पे जा रहे हैं। अगर आपको क्लिप में स्पीड ज़्यादा नज़र आए तो समझ लेना किसी क्लिप में कि मैंने उसको स्पीड अप किया हुआ है। लेकिन ट्रैफिक कोई भी नहीं है यार। ये देखो, ये जो छोटा सा टेम्पो गया, ये लोकल वालों का टेम्पो लग रहा है। कंट्री साइड अच्छी लग रही है बड़ी ये। और अब तो हाइट भी बढ़ गई होगी, मैं देख के बताता हूँ आपको हाइट कितनी है। अभी हाइट 4011 मीटर हो गया है। 4011 मीटर, आप समझ लो ले से भी हम 1000 मीटर ऊपर है। अब ये जो आ रहा है ना 100, 0, 50 फिर ये 50 लिखा है, फिर 100 लिखा है, इसका मतलब मेरे को नहीं समझ में आया। आपको पता है तो प्लीज़ जरूर बताना। ये साइड में देखो एक गांव आ गया, ली जैसा गांव है ये, इसके अंदर कुछ वही गांव है। ये पहला गांव है जिसके ऊपर मेरे को चाइनीज़ झंडे नज़र नहीं आ रहे। ये लो जी, इन्होंने यहाँ वो लगा के, स्क्रीन लगा के हमें गांव का नज़ारा ही बंद कर दिया। देखिए ये रेलवे लाइन, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले विकास दयाल बता रहा था, क्योंकि गाइड ने उसको बताया होगा कि इस रेलवे लाइन को बनाने में बहुत चैलेंजेस आए थे। ये कितने लंबे डिस्टेंस के पे पिलर्स पे ही खड़ा है। आप देखते जाओ इसको, तो ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और भाई दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा मेरे को स्टीयरिंग। ये मैं कैमरा किसी और को पकड़ाया हुआ है। तो ये देख रहे हैं कितना लंबा ये पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। ये पूरा रेलवे लाइन, सड़क नीचे ग्राउंड लेवल पे चल रही है, लेकिन रेलवे लाइन एक पर्टिकुलर हाइट पे ही चल रही है, सीधी चल रही है, और ये ख़त्म ही नहीं हो रही है। आपको ना बहुत एयर कटिंग साउंड सुनाई देगी, क्योंकि विंडो खुली हुई है। इस क्लिप को रिकॉर्ड करने के लिए हमको विंडो खोलनी पड़ी। 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही है 4000 मीटर पे, और ये रेलवे लाइन देख लीजिए आप। और हम लोग इस पहाड़ में घुसने वाले हैं। रेलवे लाइन यहाँ से कर्व हो गई है लेफ्ट में, वो भी आगे जाके मेरे को दिखाई दे रही है, एक टनल में जा रही है, और हम लोग सीधा टनल में जा रहे हैं। और देखो कितना ऊंचा पहाड़ है ऊपर। यहाँ टनल्स बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में भी काफ़ी टनल्स बन गए, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा टनल्स है। इसकी लेंथ है 6275 मीटर। 6275 मीटर। स्पीड लगाई गई है 80 किलोमीटर, और इसके अंदर हम लेन चेंज नहीं कर सकते।
तो शुरू में अभी हमने लेन चेंज कर ली है, अब इस लेन में ही आपको रहना है क्योंकि वही सॉलिड वाइट लाइन है। तो अभी वैसे तो मेरे को अभी इसके अंदर तो कैमरास अभी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हो सकता है लगे होंगे। नहीं लगे हैं, दिखाई दिए मेरे को कैमरास। तो ये भी काफ़ी लंबी टनल है। वैसे ना थोड़ा सा बोरियत होने लगी है, अब इतने टनल्स हो गए ना, छोटी टनल अच्छी लगती है, घुसे और फटाक से निकल गए। अब इसके अंदर कोई सीनरी कोई वो तो नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है, चलते चलो बस। अब एक फ्यूल स्टेशन पे हम बायो ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। यही दोस्तों मैं कह रहा था कि हमने वहाँ क्यों फ्यूल भरवाया और पूरा आधे से पौना घंटा हमने वेस्ट किया दो फ्यूल पंप ढूंढने के लिए। ये भी यू स्माइल का पेट्रोल पंप है, तो हम यहाँ पे फ्यूल भी भरवाते, बायो ब्रेक भी होती, तो वो पूरा 35 मिनट से ज़्यादा का समय हमारा बच जाता। तो ये दो पता नहीं, अभी ये जो एजेंट है, चाइनीज़ एजेंट है, उसको मालूम ही नहीं होगा कि कहाँ पे पेट्रोल पंप आएगा, तो इसलिए किसी ने चांस नहीं लिया होगा कि मिले या ना मिले। This 68 last one 221 kilometers will stop. Perfect, sir. So we'll stop here for making our lunch. ये देखिए चाइनीज ट्रक्स कितने ह्यूज हैं ये, और कितने आगे का ये कैबिन है और इसके पीछे ये लोडिंग बे है, और कितना लंबा ये ट्रक है। ये पूरा माल भर के चलता है और बहुत सारे नेपाल बॉर्डर पे जाते हैं। ये पता नहीं क्या है, ये डीजल टैंक है या क्या है, ये जो सिल्वर कलर का है ये सिलेंडर। और यहाँ पे लगे हुए 1 2 3 4 5 6 8 टायर्स यहाँ हैं, 12 टायर्स पीछे हैं, और ये एक और ट्रक है। सो दीज गाइज आर मेकिंग फूड। हेलो, यहाँ पे नो थैंक यू, कैरी ऑन। तो ये लोग अपना यहाँ पे लंच कर रहे हैं। जैसे हम अपना कार कैंपिंग करते हैं ना, ये ट्रक कैंपिंग हो रही है। फ्रेंड्स देखो क्या नज़ारे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। एक मक्खन जैसी सड़क और उसके सामने इतने खूबसूरत पहाड़ और उसके ऊपर इतने खूबसूरत बादलों का खेल। शायद कैमरा उतना जस्टिस ना कर पाए, लेकिन बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। देखते जाइए, बस आप मज़े लीजिए। अब मैं इसके बाद नहीं कुछ बोलूँगा, म्यूज़िक डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। एंजॉय करिए इस राइड को, कम से कम 2 मिनट तक आप इसको एंजॉय करिए म्यूज़िक के साथ।
और आगे मेरे को ना कुछ राइट में याक्स भी नज़र आ रहे हैं, आपको शायद नहीं दिखेंगे क्योंकि वो सड़क से काफ़ी नीचे हैं। और राइट साइड पे एक पहाड़ी नदी भी बह रही है, बहुत शैलो होती है ये, इसके अंदर आप आराम से कहीं से भी क्रॉस कर सकते हैं। वो गर्म हो गया, हीटिंग है। So we have left the expressway. Time is 6 p.m. and we have already covered 345 kilometers out of 468 we are supposed to cover. And now we are on a state highway sort of, which is not that good. So, but from our standards, it's still pretty good. From Chinese standard, it is not good. That is what that Chinese guide Shalon was saying in the morning. Be ready for a massage and a bumpy ride. हमारे लिए तो ये सड़क भी अच्छी है, कोई ऐसी बम्पी राइड है नहीं इसके अंदर, बट अब ये सिंगल लेन है तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल ओवरटेकिंग, लेकिन ज़्यादा कोई ट्रैफिक है नहीं, बट द सीनरीज आर अमेजिंग है। जस्ट लुक एट द लैंडस्केप, क्या मेडोज हैं यार। और दिस ऑल्टीट्यूड वी आर 4700 मीटर, एट दिस ऑल्टीट्यूड सी द मेडोज, अमेजिंग ग्रीन। और इधर उधर मैं देखूंगा ना काफ़ी याक भी चल रहे हैं, गाय भैंस तो नहीं नज़र आ रही है, याक्स नज़र आ रहे हैं। और आगे कोई वेलकम डोर है जिसको मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ना मैं गाड़ी को 1 सेकंड के लिए भी स्टॉप कर पाऊंगा, बट दी फ्लैग्स आर लुकिंग गुड। देखो आप इन सड़क पे भी कर्व्स का ना मोड़ ऐसे दिया है कि बड़े बड़े ट्रक्स भी अपनी लेन में रहते हुए यहाँ पे मुड़ सकते हैं। मतलब सड़क की इंजीनियरिंग ऐसी है, कोई यू टर्न्स और वो तो है ही नहीं। अब देखो एक ट्रक आ रहा है सामने जिसके ऊपर गाड़ियां लदी हुई हैं, ये 2 ट्रक है या 1 ट्रक है मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लंबा तो बहुत लग रहा है मेरे को। नहीं ये एक ही ट्रक था, अब देखो कितना लंबा ट्रक था ये। तो ये सड़क ऐसी डिजाइन हुई है कि इतने लंबे लंबे ट्रक भी इस पे चल सके। क्या ट्रकों को छोड़ो और सीनरी को एंजॉय करो। तो ये ना थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया, एक्सप्रेस वे पे अलग सिनेरियो आ रहा था, अब एक्सप्रेस वे ऐसे बनाए ना दोनों तरफ रेलिंग लगाई होती है, आप कहीं रुक भी नहीं सकते, तो आपको चलना ही है। वहाँ थोड़ा सा भी रुकोगे, हम बीच में रुके थे तो पीछे से गाड़ी आ गई कॉप्स की और बोला कि चलो। तो अब आगे देखो,
जहां तक नजर जाती है ना मेडोज ही मेडोज है, ऑलमोस्ट प्लेन, ब्यूटीफुल दिस इज। आगे एक टर्न हो रहा है, टर्न होने के बाद फिर आप और क्लोजली देख पाएंगे। ये जो हिल है ना, ये बस ये हिल जो मेरे राइट और लेफ्ट पे है, ये हिल खत्म होने वाली है और अभी आप मेडोज देख पाएंगे। अब ये हिल खत्म हो रही है और ये हिल बहुत बड़ी नहीं है। आप यहाँ मजे से ना, मतलब यहाँ कार कैंपिंग करने का कितना मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा यहाँ पे टेंट में रुकने में या कार कैंपिंग में। लेकिन इन्होंने ना दोनों तरफ फेंसिंग की हुई है टू प्रिजर्व द मेडोज, ये नहीं कि यहाँ कोई भी घुस जाए। और सामने एक गांव है। अच्छा, ये फेंसिंग इसलिए भी हो सकती है कि जो ये याक्स है ना, ये चढ़ते चढ़ते सड़क पे ना आ जाए, वो प्रोबेबल रीजन भी हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और कैमरे को घुमा के दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, आप एंजॉय करेंगे। ये देखिए क्या मेडोज है, और ऐसा नहीं है दोनों साइड पे है, इस साइड पे भी है। थोड़ा कैमरा शेक हो सकता है क्योंकि जूम में आ गया है ना। So we have reached a police checkpoint. Amy has gone with the passports. So you see that Chinese agent is very important because if you don't have one, फिर आप कैसे जाके कम्युनिकेट करोगे। और वैसे भी कंपलसरी है चाइनीज गाइड का आपके साथ होना इन्हीं सब कारणों के लिए। और वो हमारे सबके पासपोर्ट लेके आगे बूथ में गई है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। हम आज का डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाले हैं और आप ये देखिए, एंड वी आर एट ए हाइट स्लाइटली मोर देन 4700 मीटर। 4700 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा हाइट पे हैं। और यहाँ एक ऊपर हिल से मैं नीचे का व्यू आपको दिखा रहा हूँ, कितना खूबसूरत है ये। पूरे वाइट वाइट मेडोज़ हैं ये। और अब हमारा डेस्टिनेशन आने ही वाला है। चाइनीज़ टाइम 8:30 PM पे हम इस होटल पे पहुंच गए हैं। ये होटल क्यों चूज़ किया गया है, क्योंकि हमें फर्दर आगे जाना है, तो ये पिट स्टॉप है। तो सुबह अब यहाँ से हम 10:30 निकलेंगे और यहाँ कुछ नहीं करना, आज हम रेस्ट करेंगे। और मैं बहुत टायर्ड भी हूँ, तबीयत भी मेरे को ना हेडेक हो रहा है। हाइट 4700 मीटर है। ये यहाँ से अपना रेट्स देख सकते हैं रूम के। सो 368, 468, 468। You'll find it really fun. And what is the name of this hotel? No, she's. Hi. Do you know the name of the hotel? So they are just shaking their hand, saying hi. They are not able to tell me the name of the hotel. So I'll ask the Chinese. Shalon, what is the name of the hotel? Sanjiangyuan Hotel. Tell me again. Sanjiangyuan. Sanjiang. San means three rivers origin place. Okay, here Because three rivers meet Yellow or they River, originate? The Yangtze River and the Total River. There's three rivers. Three big rivers. Three origin big from here. Okay, three big rivers originate from here. Yeah, so that's the Can name you of the hotel. can you tell the three names of the river again? The Yangtze River, the second longest in the world, and the Yellow River, it's the number 6 longest in the world. Number 6 longest in the world. Yes, Yellow River. and the Yangtze River is the second longest. Which one second The longest? Yangtze River, the Long Yang. River, Okay. yeah, and the Total River. Total Wow. River. You dance well. Stop dancing. So So you tell me Yangtze the River is the Long River. okay Changjiang is the Long River. okay name of the hotel. What did you say? The Sanjiangyuan Hotel. Sun Jiang Jiang Yong. Hotel. Okay, Sun Jong Yong Hotel is the Yeah. name. गाइस, चाइनीज में सीखने वाला हूँ। जब तक मैं वापस आऊँगा ना, मैं चाइनीज गाइड बन के आऊँगा, फिर तुम लोगों को लेके तुम लोगों को गाइड करूँगा। ये रहा मेरा रूम नंबर 8358। रूम में आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद रिसेप्शन दिखाता हूँ। तो रूम एज यूजुअल ठीक है। इस नोवा एजेंट ने रूम्स तो ठीक बुक किए हैं, तो आप देख सकते हैं रूम को। तो ये 2 स्प्लिट बेड है और यहाँ पे ये फायर मास्क दिए हुए हैं, अलमीरा है, केटल है और ये वॉशरूम है जिसके अंदर अच्छी लाइट चमक रही है। दोस्तों, मेरे को थोड़ा हेडेक हो गया है। ऑल्टीट्यूड भी 4700 मीटर है और बहुत दिनों से ना पूरी नींद नहीं आ रही है। पता नहीं क्या कारण है। सोच रहा हूँ कोई नींद की गोली मिल जाए तो लेके आज सोने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी हालत टाइट हो गई है
अब जो भी है तो है, झेलना तो है। लेकिन कल ना सुबह 10:30 बजे यहाँ से निकलने का है, कहीं हमें जाना तो है ही नहीं, होटल में ही रहना है, तो आज शायद रेस्ट मिल जाए तो कल बॉडी ठीक चलेगी।